Hello children, welcome back to Maths Stimulus. In this module, we are going to continue application of derivative, and here we'll learn increasing and decreasing nature of the functions. So first let us know what are increasing function. Any function fx is said to be increasing if x1 is strictly less than x2, implies f of x1 is less than or equal to f of x2. What is the meaning of this? Let us consider. Let us take 2 points x1 and x2 on x-axis. It is your x1, this is your x2 point, x3 point and x4 point. See, x1 is less than x2, x2 is less than x3, x3 is less than x4. If x1 is less than x2, this implies f of x1 is less than or equal to f of x2. What is the meaning of it? You can see at x1, this value is f of x1. This value is f of x2. You can see f of x1 is less than f of x2. So, but in this interval from x2 to x3, you can see value of function between x2 and x3 is parallel to x-axis. In this interval, f of x2 is equal to f of x3. Again in interval from x3 to x4, as x3 is less than x4, but the value of f of x3 is less than f of x4. If we move ahead in next interval from x4 to x5, line is parallel to x-axis. So what we are observing, what is the conclusion? In this graph, if x1 is strictly less than x2, value of x1 is strictly less than x2, it implies value of your function f of x1 is either less than or equal to f of x2. Then function is said to be increasing. As overall you can see function is increasing, although in 2 or 3 interval function is parallel, but overall function is increasing. You can see another graph. Here any function fx is said to be strictly increasing. What is the meaning of strictly? See, if x1 is strictly less than x2, you can see here it is a curve. This value x1 is less than x2 undoubtedly, but at the x1 value of function f of x1 is strictly less than f of x2. It is your f of x1 and this is your f of x2. You can see f of x1 is less than f of x2. So if value of function is strictly less than, for x1 is strictly less than x2, then function is said to be strictly increasing. You can see roughly from the graph, function is continuously increasing. As value of x is increasing, continuously value of y is increasing. There is no point in the curve where your function, your line of the curve is going to be parallel with the x-axis as in the above graph. From x2 to x3, you can see curve is parallel to x-axis. So above function, above curve is an example of increasing function, but this is an example of strictly increasing curve. Next, see what are the decreasing function. Similarly, if fx is a function such that x1 is strictly less than x2, but f of x1 is greater than or equal to f of x2. As you can see, let us consider this is your point x1
Next point, this point is at x2 value, x3 value. Here you can see x1 is less than x2, x2 is less than x3, because as we move from left to right, value of x increases. The value of function at x1 will be f of x1. This value is f of x1 and this value is f of x2. You can see f of x1 is greater than f of x2. So यदि छोटी वैल्यू x के लिए आपकी वैल्यू ऑफ फंक्शन बड़ी आ रही है, रिवर्स आ रही है, मीन्स x1 इज लेस देन x2, लेकिन लेस वैल्यू ऑफ x पर आपके फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, मीन्स फंक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, देन विल से फंक्शन इज डिक्रीजिंग. इफ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग. Somewhere in the interval, value of f of x1 can be equal to f of x2. As you can see here, f of x2 is nearly equal to f of x1 is nearly equal to f of x2. Any function fx is said to be strictly decreasing if x1 is strictly less than x2, implies value of function at x1 is strictly greater than value of function at x2 point. Let us consider this is your x1 point, any x2 point. You can see x1 is less than x2, but the value of function at x1 is greater than value of function at x2. So it is continuously decreasing. So it is a graph of strictly decreasing function. So I am sure you are very much clear what is decreasing and what is strictly decreasing. For decreasing, in equation between the value of y will be slave, greater than or equal to. But for strictly decreasing, in equation will be strict in equation, strictly increasing value. If x1 is strictly less than x2, implies value of function at x1 is strictly greater than value of function at x2. Now see how we are going to apply this method of increasing, decreasing in the solution of sums without using derivative, as we are learning this topic under the application of derivative. But here are the few sums with which we can solve without applying derivative. See how? Here is the first example. Question says, show that the function given by fx is equal to 7x minus 3 is strictly increasing on R. Function is given 7x minus 3. In the similar way as we have discussed right now, let us consider x1 and x2 be any two numbers in the real number R such that x1 is strictly less than x2. Now first consider two arbitrary values in the real number R, then make the function which is given to you. You are given here 7x minus 3. Now try to make this function. What you will do, multiply both sides by 7. You will get 7x1 is strictly less than 7x2. Then to make the function, subtract 3 both the side. You will get 7x1 minus 3 is strictly less than 7x2 minus 3. So what is it? This is f of x1. What is it? F of x2. So for x1 strictly less than x2, you are getting f of x1 is strictly less than f of x2. Implies f is strictly increasing. The sign of inequation change नहीं हो रहा है, less के लिए less ही value आ रही है और strict inequation आ रही है. It implies function is strictly increasing. You can see one more example. Show that the function f given by, here I am considering a cubic equation. If cubic or quadratic equation is given and you have to find out the whether function is increasing or decreasing without using derivative, how you will move on? Write first of all f prime x. Children, this is with the help of f prime x. Find the derivative. Now derivative is 3x square minus 6x plus 4.
it is a quadratic equation. What you will do here? Quadratic equation is a completing square method से इसको solve करो. पूरी इक्वेशन से पहले 3 को कॉमन निकालो. You can see हम यहाँ से इस 4 को लिख सकते हैं 3 + 1. So 4 के प्लेस पे लिखेंगे 3 + 1. होल इक्वेशन से 3 कॉमन निकालो. x² माइनस 2x, इस 3 से 3 बाहर जाएगा तो अंदर 1 रिमेनिंग, एंड +1 इट इज एज इट इज. नाउ व्हाट इज दिस यू आर गेटिंग इन द ब्रैकेट? इट इज x - 1 का होल स्क्वायर. सो यू आर गेटिंग 3 × x - 1 का होल स्क्वायर +1. यू कैन चेक x - 1 का होल स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर ईच value of x belonging to real number r. x is either negative or positive, but x - 1 ka whole square is always positive. So your this term is positive, +1 is whole term will always be positive for all x belonging to real number r. So therefore function is strictly increasing. It is strictly greater than 0, means f prime x is strictly greater than 0. तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर. बेटा ये क्वेश्चन डेरिवेटिव के यूज का ही आ गया, यहाँ पे इंक्लूड हुआ है. एल्स ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी आगे एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड से सिर्फ हमने डेरिवेटिव निकाला. इफ एफ प्राइम एक्स इज ग्रेटर देन 0, वी आर टेलिंग इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? रिसेंटली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द next 2 or 3 slides. Just see. Next question is, show that fx is equal to x² is strictly increasing. fx is equal to x². यदि हम इसका कर्व बनाएं, x² पैराबोला is strictly increasing in the interval -∞ to 0 closed interval. Children see, अगर मैं इसका कर्व बनाऊं आपके लिए तो एक कर्व कुछ ऐसा बनेगा. And interval from -∞ to 0 is -∞ to 0 0 closed interval का आपका इंटरवल है. अब मुझे इस इंटरवल में चेक करना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, -∞ to 0. नो, क्वेश्चन इज रॉन्ग. इट मस्ट बी डिक्रीजिंग, क्योंकि यहाँ आपका डिक्रीज हो रहा है. इन नेक्स्ट इंटरवल फ्रॉम 0 to ∞ इट इज इंक्रीजिंग. यू कैन सी वैल्यूज यहाँ आपके, अगर हम रफली देखें कर्व के अंदर, इफ दिस इज द कर्व, दिस इज डिक्रीजिंग. सी, इफ आई एम मेकिंग दिस कर्व फ्रॉम -∞ to 0, ये वैल्यू डिक्रीज कर रही है, एंड फ्रॉम 0 to ∞ इट इज इंक्रीजिंग. फ्रॉम द ग्राफ इट इज वेरी मच क्लियर, बट यू नीड टू शो. तो व्हाट यू विल डू? You will take any two values x1 and x2 belonging to your given interval -∞ to 0. Let us take, I have taken this value as x1 and this value as x2, such that x1 is less than x2, strictly less than x2. First multiply both sides by the x1. You will get x1 square in the left and right hand side for x1 x2. Why this sign is interchanged? For example, let us take a numeric value. हम particular value को consider करते हैं. -3 is strictly less than -2. Multiplying both sides with the -3, what you will get? In the left hand side you will get 9. In the right hand side, -3 into -2 plus 6. Is it correct? No. If x1 is strictly less than x2 and you are going to multiply with x1 both side of an equation, then your sign of an equation will get changed. That way your sign of an equation has been changed here. It becomes x1 square is strictly greater than x1 x2, because x1 is strictly less than 0. Then only this condition is satisfied here, क्योंकि हमारा इंटरवल -∞ to 0, नेगेटिव हमारे वैल्यूज है सारी x एक्सिस पर, तो हमारा x1 कैसा है? लेस देन 0 है. सो हमारा साइन ऑफ एन इक्वेशन विल गेट रिवर्स्ड, इट विल गेट चेंज्ड. ओके, नाउ सी, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग दिस इन इक्वेशन बोथ साइड विद द x2, व्हाट हैपेंस देन? इफ वी आर मल्टीप्लाइंग विद x2, x2 is greater than x1. So if in this example only this is x1 and this -2 is x2, multiplying both sides with -2, what you will get? You will get -3 into -2 6
and right side पे you are going to get 4. -2 into -2 4. So what is it here? You again sign of an equation is going to be reversed, but आपके पास होगा क्या? यहाँ पर x1 था और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो x2 को. x1 x2 is greater than or equal to x2 square, where x2 is strictly less than ही ले लो, इक्वल टू 0 की कोई जरूरत नहीं है. इक्वल टू 0 पर भी आपके पास सेम इक्वेशन आएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा. इफ यू स्ट्रिक्टली, बिकॉज हमारा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल है, हम 0 भी ले सकते हैं. सो x2 या तो छोटा है या इक्वल टू 0 है, तो हमारे इसीलिए यहाँ पर साइन इक्वल टू का भी इंक्लूड हुआ है. नाउ कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आपके पास क्या इक्वेशन आएगी? देखो, x1 स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 x2 एंड x1 x2 is greater than or equal to x2 square. So what does this mean? In conclusion, what it implies? It implies x1 square is strictly greater than x2 ka square. And what is it? It is your value of function at x1 and right hand side is the value of function at x2. Means if x1 is strictly less than x2, you are getting f of x1 is strictly greater than f of x2. So what does this mean? Your sign is reversed. आपने less than ले रखा है, but you are getting reversed sign. आपकी value of y बड़ी है at point x1 than that of the value of function at point x2, which you can see from the graph. x1 is less than x2, but the value of function is greater at x1 than x2. So function is strictly decreasing in interval -infinity to 0. If we'll change interval in this question, हम थोड़ा सा change करते हैं कि function is find or show that fx is equal to x square is strictly increasing. तो interval मैं डाल दूँ close interval 0 to infinity, तो आपके पास increasing आएगा. From graph you can see it. From 0 to infinity function is increasing. यहाँ आपको मिलेगा x1 is less than x2, उसके लिए आपको f of x1 will be strictly less than f of x2. You can prove it by your own. So this question is for you to do in your homework for close interval 0 to infinity. Check करो function आपका increasing है. Now चिल्ड्रन सी, अभी तक हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमने विदाउट डेरिवेटिव ही ये फाइंड आउट कर लिया कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. नाउ वी नीड टू फाइंड एवरी क्वेश्चन वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लेस देन डायरेक्टली फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x1 इज स्ट्रिक्टली लेस देन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x2. So how can we find every function is increasing or decreasing? How we can find? Answer is with the help of derivatives, and particularly with the help of first derivative. Why with the help of derivative? See, for this point to know how we are going to use derivatives to find function is increasing or decreasing, recall a point. You have learned this point in chapter 10. What is it? Let us consider a line which makes an angle theta with positive direction of x-axis. This angle is called inclination angle. It is inclination angle. If this theta is an acute angle, then tan theta क्या होगा? If theta is acute, तो tan theta is positive. और tan theta हमें क्या देता है? Slope. Theta is inclination angle and tan theta is slope of the line. So if theta is acute, means inclination angle of any line with positive direction of x-axis is acute, then slope of that line is positive. And you can see
If theta is obtuse, then tan theta is negative, because obtuse angle बनने पर आपका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में tan theta नेगेटिव होता है. सो इफ थीटा इज obtuse, tan theta is negative, and tan theta means ultimately slope of line is negative. tan theta negative implies slope is negative. तो ये दो पॉइंट हम अपने 11th क्लास में चैप्टर 10 में हमने ये चीजें की हैं. नाउ हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस पॉइंट इन द डेरिवेटिव. सी, increasing functions as an application of derivative. See, let us consider this is a curve. This is the curve of function. अब हम रोल्स थ्योरम में, LMVT में, डिफरेंशिएशन में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से जानते हैं कि कर्व के किसी भी पॉइंट पर f प्राइम x हमें टेंजेंट लाइन देता है. जैसे let us consider this is a tangent line at this point. At this point tangent line would be like this. At this point tangent line would be like this. If tangent line to the curve makes an acute angle with positive direction of x-axis, curve may be this or curve may be downward direction. Slope, you can see slope can be this, tangent line can be this, tangent line can be this. If tangent line at any point on the curve makes acute angle with positive direction of x-axis, so this implies what? The slope of the tangent line is positive. If theta is acute, in the previous slide I have shown you, if theta is acute, so tan theta is positive. Here also tan theta is positive. And what is tan theta? This is slope. This is slope. Now you know very well slope with the help of derivative हम कैसे निकालते हैं? By finding derivative at that point, means f prime x. F prime x gives us a slope only. So if f prime x is positive, means tan theta is positive, implies f prime x is positive. So f prime x positive का मतलब कि f prime x is strictly greater than 0. f prime x is your slope only. So if function is given to you, you find f prime x, and if it is positive, it implies function is increasing. If it is strictly greater than 0, strict inequation है तो you can say strictly increasing. If it is greater than or equal to 0, then function is called increasing. So this is the way how by applying derivative you can find function is increasing, or in the next slide you can see how to find function is decreasing. You just simply find f prime x. If it is positive, strictly greater than 0, function is strictly increasing. If it is greater than or equal to 0, then function is increasing. Equal to 0 का मतलब there are points जहाँ पर आपका tangent line x axis के parallel भी है. So वो फंक्शन कहीं आपका फंक्शन कर्व इंक्रीज हो रहा है तो कहीं आपका स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है. नाउ डिक्रीजिंग फंक्शन एज एन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. सिमिलरली यू कैन सी कि इफ टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट मेक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है तो tan थीटा आपका क्या होगा? tan थीटा इज नेगेटिव. tan थीटा नेगेटिव का मतलब स्लोप नेगेटिव. सो इफ f प्राइम x और बाय डेरिवेटिव आपका स्लोप क्या होता है? f प्राइम x इन द बोथ द कर्व. ईदर कर्व इज दिस और कर्व इज दिस. यू कैन सी इन बोथ थीटा इज योर ऑब्ट्यूज एंगल. थीटा ऑब्ट्यूज, स्लोप इज नेगेटिव. स्लोप मीन्स tan थीटा इज नेगेटिव. Now again, what is slope? f prime x. यदि आपका f prime x slope at any point, you can find slope by finding the f prime x slope of the tangent line. If f prime x is negative, तो आप कैसे conclude करेंगे?
इफ इट इज नेगेटिव लेस देन 0, अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वेशन है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है, नेगेटिव होगा तो वो 0 से छोटा है। अब 0 से छोटा है अगर स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और लेस देन और इक्वल टू 0 है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। सो बेटा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में डिफरेंस इन इक्वेशन का ही है। यदि आपकी स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन है स्ट्रिक्टली लेस देन 0 है तो यू विल से फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और वो लेस देन और इक्वल टू 0 है तो यू विल से फंक्शन इज डिक्रीजिंग। मींस ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जहां फंक्शन आपका इक्वल टू 0 भी है। यदि आपका फंक्शन 1, 2 या 3 पॉइंट पर इक्वल टू 0 आता है तो ओवरऑल हम फंक्शन में से स्ट्रिक्टली वर्ड को रिमूव कर देते हैं। जैसे फॉर दिस यू कैन सी एन एग्जांपल f of x. Here see what are the functions which are neither increasing nor decreasing. Before taking the example, if fx is equal to sin x और cos x, हम अगर 0 से 2 पाई के अंदर या sin x cos x का पूरा ग्राफ देखें तो ये हमारे कंटिन्यूसली इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं। अगर हम इसको यहाँ देखें ये 0 से शुरू हो रहा है सपोज, क्योंकि f of sin थीटा f of x equal to sin x आपका 0 से कर्व शुरू होता है आपका। तो अगर ये 0 से शुरू हो रहा है तो 0 से 2 पाई के अंदर यू कैन सी ये जितना इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज 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 फिर इनका इंक्रीज हुआ। तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ द कर्व विच इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर हमारा कोई क्वेश्चन हम देखें जो हम एज अ सॉल्यूशन के लिए, तो हमारा fx इज इक्वल टू sin x और fx इज इक्वल टू cos x, ये हमारे फंक्शंस हैं जो नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग के एग्जांपल्स हैं। Now see solved examples where you will see how to find function is increasing or decreasing with the help of first derivative. See first question. Before seeing the question you see the steps. हमारे steps क्या होंगे जिन्हें हम follow करेंगे। देखो first you will find जो भी function आपको given है आप उसका f prime x find करो। Second step पर f prime x को 0 रखो। f प्राइम x को 0 रखकर इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। These are called critical points. So find critical points. Then अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि रियल नंबर लाइन पे बताओ कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स को जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे, सपोज करो यहाँ से आपको A, B, C पॉइंट मिले हैं, तो आप नंबर लाइन को -∞ से इन्फिनिटी को सब इंटरवल्स में डिवाइड करो A, B एंड C। इन सब इंटरवल्स में इंटरवल A, B, C, D सब इंटरवल्स में आप उसको डिवाइड करो। डिवाइड द गिवन इंटरवल। इट मे हैपन कि आपको रियल नंबर लाइन ना गिवन हो, एक गिवन इंटरवल हो जिसमें आपको बताना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इफ इंटरवल इज गिवन तो डिवाइड दिस गिवन इंटरवल इनटू सब इंटरवल्स, और यदि इंटरवल नहीं गिवन है तो आप रियल नंबर लाइन को कंसीडर करोगे और उसे सब इंटरवल्स में डिवाइड करोगे। सो फोर्थ स्टेप पर डिवाइड गिवन इंटरवल इनटू सब इंटरवल्स, देन चेक द साइन ऑफ f प्राइम x इन दीज सब इंटरवल्स। फिर आप जो भी गिवन सब इंटरवल्स आपके डिवाइड हुए हैं इनका आर्बिट्रेरी कोई पॉइंट लेकर f प्राइम x में वैल्यू को चेक करो। Either it is positive और नेगेटिव, हमें केवल साइन से मतलब है, साइन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द वैल्यू, वैल्यू क्या आ रही है, हमें केवल साइन से मतलब है। इफ f prime x comes out to be positive then we'll say it is increasing. If f prime x comes out to be negative then we will call it is decreasing. Now see example how we will apply this concept. But this is a question from NCERT. Question says prove that logarithmic function is strictly increasing in open interval 0 to infinity. fx is log x. आप इसका सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव करो, फाइंड द डेरिवेटिव। तो f प्राइम x is 1/x. सेकेंड स्टेप put f prime x is equal to 0. It implies 1/x is equal to 0.
Children, in this interval, if x is open interval 0 to infinity, in this interval 0 is not included, means आपके पास 0 के just right से values हैं और up till infinity में all positive values हैं आपकी. For all positive x is 1 upon x, ever you will get 0. You will never get this value equal to 0. If x is positive, तो 1 upon x is also positive. For each value, आपके पास इंटरवल क्या था फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. 0 पर ओपन इंटरवल है तो आपका एक ही इंटरवल है और आपको यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कोई नहीं मिल रहा है. नो क्रिटिकल पॉइंट यू आर गोइंग टू गेट. यू आर जस्ट चेकिंग कि आपके इस इंटरवल में 1 अपॉन एक्स कैसा होगा, एफ प्राइम एक्स कैसा है. तो हम डायरेक्टली अगर हमें कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिला है तो हम डायरेक्टली हम उसको चेक कर रहे हैं. मेरा इंटरवल था 0 टू इन्फिनिटी, मैं इसमें चेक कर रही हूँ कि मेरा एफ प्राइम एक्स का नेचर कैसा है. यदि मेरा x सारे पॉजिटिव हैं तो 1 अपॉन x इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x विच आर बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. What it implies? It implies basically f prime x is positive. तो f prime x पॉजिटिव है तो हमारा कंक्लूजन क्या है, फंक्शन हमारा कैसा है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग. और हमें अब क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इक्वल टू 0 किसी पॉइंट पे वैल्यू हो ही नहीं सकती. इट कैन नेवर इक्वल टू 0. सो हमारे पास स्ट्रिक्ट इक्वेशन आ रही है तो विल से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. आप नंबर लाइन बनाकर 2 पॉइंट में एक्सप्लेन कर सकते हो और यू कैन मेक अ टेबल लाइक दिस कि आपका जो सब इंटरवल बना है, आप लिखो सब इंटरवल, उसमें से कोई टेस्ट पॉइंट ले लो. इस इंटरवल में से सपोज मैंने 1 लिया, आप कोई भी पॉइंट एज ए चेक पॉइंट, टेस्ट पॉइंट ले सकते हो. पुट दैट पॉइंट इन एफ प्राइम एक्स, यू विल चेक 1 अपॉन 1, आपकी वैल्यू 1 आएगी. ऑल्दो हम टेस्ट वैल्यूज में इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमारे लिए केवल चेकिंग के लिए है, ये आप रफ में भी कर सकते हो. वी आर इंटरेस्टेड इन साइन ओनली. हमें साइन पता होना चाहिए कि साइन क्या आएगा. तो 1 इज पॉजिटिव तो वी आर गेटिंग पॉजिटिव साइन. It implies what we are concluding कि f prime x is strictly greater than 0. तो हम कह रहे हैं function is strictly increasing. So proved कि logarithmic function open interval 0 to infinity में strictly increasing है. Now see one more question. Find the interval in which function minus 2x cube minus 9x square minus 12x plus 1 is either increasing or decreasing. You find all those intervals. तो आपको फंक्शन गिवन है और कोई इंटरवल की बात नहीं की है तो हम पूरे रियल नंबर लाइन को कंसिडर करेंगे. पहले स्टेप पर आप डिफरेंशिएशन निकालो. हमने डिफरेंशिएशन किया और इसमें से -6 कॉमन लेके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज कर लिया क्योंकि हमें बेसिकली अब इसको 0 रखना है. तो आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले, लीनियर इक्वेशन मिले, उसको फैक्टराइज कर लो. तो फैक्टराइज किया x plus 2 x plus 1. नाउ पुट f prime x is equal to 0. If you are putting f prime x is equal to 0, you are getting from here either -2 or -1. These are the two critical points you are getting. आपने 2 स्टेप कर लिए. फर्स्ट स्टेप पर आपने f प्राइम x निकाला. सेकंड स्टेप में आपने इक्वल टू 0 रखकर क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट किए. हमारे 2 स्टेप का काम हो गया. नाउ थर्ड स्टेप पर हमारे पास है क्या, रियल नंबर लाइन. अगर इंटरवल गिवन नहीं है तो कंप्लीट होल रियल नंबर लाइन को आप इंटरवल में डिवाइड करोगे. पुट मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. हमेशा जब सब इंटरवल्स डिवाइड करो तो ये ध्यान रखना आपने क्रिटिकल पॉइंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है. पहले -2 देन -1. सो यू आर गेटिंग सब इंटरवल्स A, B and C. What is interval A? -∞ to -2 ओपन इंटरवल. आपने क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ इंक्लूड नहीं करना है या क्लोज्ड इंटरवल नहीं लगाना है. सेकंड क्या होगा, -2 to -1 ओपन इंटरवल. और थर्ड सब इंटरवल है आपका -1 से इन्फिनिटी तक. यहाँ पर आपने क्लोज्ड इंटरवल क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि बेटा क्रिटिकल पॉइंट वही पॉइंट है. आपने f प्राइम x इज इक्वल टू 0. f प्राइम x 0 कहाँ होता है, जहाँ पर आपका टेंजेंट लाइन का स्लोप x एक्सिस के पैरेलल है.
तो ये एक्चुअली वो पॉइंट है जहां ऑलरेडी आपका एफ प्राइम एक्स इक्वल टू 0 है, तो इसलिए आपको क्रिटिकल पॉइंट पे या क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है। आप फिर वहां से कोई टेस्ट पॉइंट लो, इस इंटरवल के बीच हमने एक टेस्ट पॉइंट उठाया, उसको हमने एफ प्राइम एक्स में रख के चेक किया। ये टेस्ट वैल्यू में आपको फिर से बता रही बेटा निकालने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन चेक करना है। अगर मैं -3 रखती हूँ तो एफ प्राइम एक्स आपने ये वाली इक्वेशन पूरी की पूरी यूज करनी है। इसमें आप देख रहे हो एक ये माइनस साइन है, यहाँ -3 रखोगे तो आपको फिर से यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ -3 रखोगे तो आपको माइनस मिलेगा, तो 1 माइनस, 2 माइनस और 3 माइनस, 3 माइनस की प्रोडक्ट आपको ओवरऑल नेगेटिव साइन देगा। आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मीन्स एफ प्राइम एक्स इज लेस देन 0, तो इस इंटरवल में आपका एफ प्राइम एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। एफ प्राइम एक्स लेस देन 0 का मतलब फंक्शन इज डिक्रीजिंग। हम इस तरह से इन्वर्टेड एरो लगाकर डिक्रीजिंग शो करते हैं। सेकेंड, आपने इंटरवल देखा, ये इसका कोई भी पॉइंट उठाओ, हमने -1.5 उठाया, -1.5 रखने पर देखो दिस इज फर्स्ट नेगेटिव, यहाँ आपकी इस ब्रैकेट से पॉजिटिव आएगा आपके पास और यहाँ से आपके पास नेगेटिव वैल्यू बचेगी, तो 2 नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होकर आपके पास पॉजिटिव साइन आएगा। पॉजिटिव मीन्स एफ प्राइम एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। अब थर्ड इंटरवल में चेक करो, -1 to 0। अगर आपके पास 0 पॉइंट है उस इंटरवल में तो सबसे इजीएस्ट पॉइंट होता है हमारे लिए चेक पॉइंट, तो सबसे इजीएस्ट पॉइंट आप उठा लो 0, उसमें रख कर देखो। अगर आप 0 रखोगे तो ये वैल्यू आपकी, अगर आपने 0 रखा है तो यहाँ से 2 पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, तो आपके पास अल्टीमेटली नेगेटिव साइन आएगा। एफ प्राइम एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। तो आपको पता चल गया आप किस इंटरवल में आपके पास ए इंटरवल में नेगेटिव वैल्यू है प्राइम एक्स की, बी में पॉजिटिव है और सी में नेगेटिव वैल्यू है आपकी। तो इंटरवल -∞ to -2 के अंदर आपका फंक्शन नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग 2 में है तो इनको हम कंबाइंड कैसे करते हैं, -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। इस इंटरवल में आपके पास फंक्शन डिक्रीजिंग है। बेटा देखो डिक्रीजिंग की बात हो रही है, मैंने ये इंटरवल यहाँ पर -2 और -1 पर क्लोज्ड कर दिया है, क्योंकि अगर मैं -2 पर चेक करूँ, -1 पर चेक करूँ तो मेरा फंक्शन इक्वल टू 0 है। तो अगर मेरा फंक्शन मैंने यहाँ -2 क्लोज कर दिया है तो यहाँ पर इक्वल टू 0 इंक्लूड हो जाएगा। इक्वल टू 0 का मतलब लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया, सो इसलिए फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर हम स्ट्रिक्ट इक्वेशन पे बात करते तो हमारा वर्ड यहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इंक्लूड हो जाता। अगर हमने क्रिटिकल पॉइंट को क्लोज कर दिया तो इंक्रीजिंग, और क्रिटिकल पॉइंट को ओपन रखा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आंसर होता। क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा है तो इसलिए यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट पर आपका इंटरवल क्लोज्ड है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन which has come already in All India 2014. Find the values of x for which x into x minus 2 का whole square is an increasing function. So same, पहले f prime x निकालो, f prime x को फैक्टराइज करो फिर, क्योंकि उसको इक्वल टू 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। फर्स्ट ब्रैकेट से x कॉमन निकालो और सेकंड ब्रैकेट से 2 कॉमन आएगा तो बाहर आपका 4x बनेगा। आपकी ये 3 फैक्टराइजेशन आपके फॉर्म ऑफ फैक्टराइज्ड टर्म हो गई। इनको इक्वल टू 0 रखोगे तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से 0, यहाँ से 1 और यहाँ से 2, आपके ये 3 क्रिटिकल पॉइंट आपको मिल गए। तो पहला स्टेप f प्राइम x फाइंड आउट करना, दूसरा स्टेप f प्राइम x को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना। हमारे 2 स्टेप हो गए। थर्ड स्टेप पे फंक्शन में कोई इंटरवल गिवन है नहीं हमें, यू कैन सी फंक्शन में नो इंटरवल इज गिवन, तो हम क्या लेंगे, रियल नंबर लाइन को पूरे को कंसिडर करेंगे और उसको सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे। रियल नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा और हमें सब इंटरवल a b c d मिले। ए इंटरवल क्या है,
minus infinity to 0 open interval, B is 0 to 1 open interval, C is 1 to 2 open interval and D is open interval 2 to infinity. अब इन सभी इंटरवल्स में आपको f प्राइम x का साइन चेक करना है। तो यहाँ से आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू आएगी, सपोज -1 हमने टेस्ट पॉइंट लिया, -1 आप यहाँ रखोगे तो यहाँ नेगेटिव साइन, यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ -1 रखने पर यहाँ भी नेगेटिव साइन। तो 3 नेगेटिव साइन का मतलब ओवरऑल आपका नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब f प्राइम x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। स्ट्रिक्टली लेस देन 0 का मतलब डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट इंटरवल में टेस्ट पॉइंट लो, उसमें साइन चेक करो, b में आपका पॉजिटिव आ रहा है, फिर अगले में नेगेटिव आ रहा है और फिर आपका उस d इंटरवल में आपका पॉजिटिव आ रहा है। तो आपको बता रहे थे इंक्रीजिंग कहाँ है। क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x के वो इंटरवल बताओ जहां पर वो इंक्रीजिंग है। तो आपका क्या इंटरवल होगा, इंक्रीजिंग पूछा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं पूछा। तो इंक्रीजिंग के लिए आपका इंटरवल है आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 to इंफिनिटी। तो इसीलिए आपका फंक्शन आ गया दिस। आपके इंटरवल आ गए जहां फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1 यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 2 to इंफिनिटी। अगर यही क्वेश्चन स्ट्रिक्टली पूछा होता तो आपके जो भी क्रिटिकल पॉइंट के एंड पॉइंट्स हैं वो आपके ओपन हो जाते। यहाँ ओपन इंटरवल 0 to 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 to इंफिनिटी होता इफ इट विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आई एम श्योर आपको इन क्वेश्चन से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आप कैसे निकालोगे बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव आपको समझ आ गए हैं। अब आप अपनी एक्सरसाइज 6.2 के शुरू के क्वेश्चंस को ट्राई करना, शुरू के 3-4 क्वेश्चंस को। आई एम श्योर you are able to solve increasing and decreasing questions. Thank you, students.